Please just thumbs up. If screen is clear, please thumbs up. Okay. Today we will sum up what is the problem solving. Problem solving, as I have told you that we divide different problems further different steps. और हम तब तक यानी कि प्रॉब्लम्स करते जाते हैं जब तक online market. I have told you about 5 W's. What does it mean by 5 W's? 5 W's. Why he has started the business? What was the purpose? Who was the audience? Where did he started that business? For whom he has started that business? अब उसने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया ऑनलाइन मार्केट का, पर्पस इस बिजनेस का क्या था कि उसने क्या करना है, ऑनलाइन अर्निंग. अब इस ऑनलाइन अर्निंग में उसने यूज किया एक प्लेटफॉर्म जिसे कहते हैं e-commerce. Do you know what does it mean by e-commerce? Yes, my dear students. Please, can you describe what does it mean by e-commerce? Yes, Nabil. Nabil, are you there? Eric. Eric, Aroma, please can you describe what does it mean by e-commerce? E-commerce means that electronic commerce. Electronic commerce means that electronic business. अब electronic business, अब ये हमें एक समझ आती है कि there is a market where do we visit. अब वहां पे हम विजिट करते हैं, हम क्या करते हैं, we pay money. Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, yes, we can also call commerce business. Aroma. Yes, yes beta. Sir, business also means commerce. Is business also means commerce? Yeah, commerce is a category of business, in which we earn profit, we sell out things and we get profit. उस चीज को जिसको हमने सेल किया है उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं. ठीक हो गया जी. वैसे ये ई कॉमर्स जो है ये आपका जो अकाउंटिंग वाले हैं, अकाउंटिंग में yes बेटा. There are many different yes, many. Sir, there are different yes, types of the hear you. Sir, there are different types of businesses. Yeah, there are many different types of business. Okay, sir. So one of there are different types of business, and e-commerce is a beta. There is a simple example. Okay, I think that you all are well familiar with Draz.pk. Are you familiar with Draz.pk? Alibaba.com, AliExpress, Yevo. Are you familiar with this type of business? I think that you all are well familiar with Alibaba, Draz.pk, और ये सारे जो है ये ई कॉमर्स टाइप के बिजनेस है. यानी कि एक मीडियम को यूज करके वो क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं. अब देखें, एक मार्केट है. अब एक मार्केट है, अब मार्केट से आप क्या लोगे, व्हाट डज मीन बाय मार्केट? मार्केट इज अ प्लेस जहां पे आप क्या करते हो. अब देखो ये मार्केट भी जो है इसको भी आप डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स में. इलेक्ट्रॉनिक मार्केट,
ठीक हो गया जी। फूड मार्केट या इस तरह की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, फूड मार्केट है, इस तरह की डिफरेंट टाइप्स की मार्केट है। अब आप क्या करते हैं, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिक्वायर्ड है, what you will do, you will move to Hall Road or maybe you will move to Hafiz Center। अब आपको पता है कि क्या मुझे मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक की चीजें मिलेंगी, या तो हफीज सेंटर से मिलेंगी या मुझे कहाँ से मिलेंगी, हॉल रोड से मिलेगी। इफ यू वांट टू buy food items, then where will you move? Will you move at Hafiz Center or will you move at Hall Road? There is a question। अब आप कहाँ पे मूव करोगे? अगर आपको फूड आइटम चाहिए तो आप तो अब हफीज सेंटर या हॉल रोड मूव नहीं करोगे। अब आप कहाँ पे मूव करोगे? या तो आप यानी कि उस जगह पे मूव करोगे जहाँ पे फूड अवेलेबल हो। अब फूड की भी टाइप्स है, आपको यानी कि डेली यूज के लिए फूड चाहिए या वेजिटेबल्स चाहिए या आपको यानी कि उसके लिए फ्रूट्स चाहिए। अब फूड आइटम्स को भी डिवाइड कर देंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। तो बेटा जब आपने देखना है मार्केट का, तो मार्केट क्या है कि मार्केट इज अ प्लेस जहाँ पे आप विजिट करोगे और विजिट करने के बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या लोगे, आइटम परचेज करोगे। और एज यू परचेज आइटम यू विल पे मनी। अब आप क्या करते हो, उसके लिए आप पैसा पे करते हो, और पैसा पे करते हो। अब वो देखें, सपोज दैट इफ ही हैज बोट आइटम ऑफ ₹500। अब उसने सपोज दैट there is a person who has bought an item of ₹500, what do you think that he will sell all item of ₹500? yes बेटा, क्या वो 500 की आइटम परचेज करके 500 की सेल आउट करेगा? Sir, he will increase the cost and then he will. yes he will sell out item with revenue। what does it mean by revenue? यानी कि वो अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड करेगा। अब देखें, he will never sell item of ₹500, क्योंकि उसने 500 की आइटम परचेज की, और 500 की आइटम क्यों सेल आउट करेगा? क्यों सेल आउट करेगा? वो कभी भी सेल आउट नहीं करेगा, क्योंकि उसने फ्यूल एडजस्टमेंट भी डालना है, उसने यानी कि जो ट्रेवल किया वो भी उसने डालना है, उसने अपना रेवेन्यू भी डालना है। अब वो ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा, और आफ्टर दैट वो कैलकुलेट करने के बाद सपोज करें वो कहेगा कि मैं 550 के बाद एक सेल आउट करूंगा, तो अगर 10 सेल आउट होती है, ठीक हो गया बेटा, उसे एक आइटम में कितना प्रॉफिट आ गया, ₹50। अगर वो 10 आइटम सेल करता है देन ही विल अर्न ₹500। ठीक है बेटा, अब उसने क्या किया, ₹500 अर्न कर लिया। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल मार्केट। यानी कि फिजिकल मार्केट यहाँ पे यानी कि एक फिजिकल एंटिटी मूव करेगी और वो फिजिकली क्या करेगी, चीजें अर्न करेगी और यानी कि लाइव पेमेंट करेगी। ठीक हो गया जी, ये तो हो गया एक फिजिकल मार्केट। इज इट एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? Yes, my dear students, is there any question regarding physical market? Yes. Sir, is it another form of business, physical market? Hmm? Is it another form of business, physical market, as you have written on the screen? Yes, बेटा, physical market means that you will move physically। यानी कि अब देखो, अब ये तो होगी फिजिकल मार्केट, यानी कि हार्डवेयर मैंने कहा कि आप इफ सपोज दैट इफ यू वांट टू बाय एन आइटम यू विल मूव फिजिकली। आपने अपने उस पे जाके मार्केट में देखा, आपने लैपटॉप देखे, आपने टैबलेट देखे, आपने मोबाइल देखे या आपने हैंड फ्री देखी, आपने फिजिकली मूव करके अपनी मर्जी की आइटम्स देखी। लेकिन सपोज दैट इफ यू डोंट हैव इनफ टाइम टू मूव देयर, अब आपके पास इनफ टाइम नहीं है, आप कहते हो कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उधर जाके मूव करूं, ट्रैवल करूं, ट्रैफिक का शोर है, ट्रैफिक का यानी कि एक रश है, तो आई डोंट वांट टू फेस सच टाइप ऑफ डिफिकल्टीज। तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे? आप फिजिकल मार्केट में मूव नहीं करना चाह रहे, आप फिजिकली वहां पे नहीं जाना चाह रहे, तो फिर आप क्या करोगे? फिर बेटा आप आ जाओगे ई मार्केट में। ठीक हो गया जी, We आप कहते हो will other things. Websites, we will make ads of our. yes Ziki, is there any question? Eric, Daniel, beta, if there is if is there any question you can ask me right now, after that we will move further। is there no question? Is there any question?
ओके, अब बेटा फिजिकली मार्केट के बाद हम आ जाते हैं, यानी कि हम कह रहे हैं कि आई डोंट वांट फेस एनी रश, मैं रश फेस नहीं करना चाह रहा। और मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा कि एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जाऊंगा, दूसरी से तीसरी मार्केट में जाऊंगा, ये मुझे डिफरेंट आइटम्स चाहिए। अब मैं डिफरेंट आइटम्स के लिए क्या करता हूँ, मैं एक ई मार्केट में आ जाता हूँ। ई मार्केट की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, Draz.pk, उसके बाद आप देखते हो Alibaba.com, उसके बाद आप देख देते हो अली express.com। दीज आर दी टाइप्स ऑफ ई मार्केट। अब बेटा अब ई मार्केट में आ गए। अब ई मार्केट में जहां पे आप फिजिकली मूव कर रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर फाइंडिंग मल्टीपल आइटम्स एट सेम प्लेस। अब आपने, अब इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा आ गई और आपके पास ऑप्शन भी मजीद आ गई। इसकी वजह है कि अब आपने फ्रूट, इफ यू वांट टू बाय फूड आइटम्स, if you want to buy an electronic items, or if you want to buy some other items, तो आपको क्या मिल गई, एक ही प्लेस पे सारी आइटम्स मिल गई। अब इस प्लेस पे जब आपको सारी आइटम्स मिल जाएंगी तो आप क्या करते हैं, आप जस्ट एक आइटम को क्लिक करते हैं। बेटा आपने एक आइटम को क्लिक किया, सपोज दैट देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आपने क्या कर रहे हो कि आप एक स्मार्ट वॉच परचेज करना चाह रहे हो, आपने स्मार्ट वॉच पे क्लिक किया। अब स्मार्ट वॉच की डिफरेंट टाइप्स आ गई आपके पास। जैसे आप एक फिजिकल मार्केट में जाते हो, आप कहते हो कि भाई आई आई वाना दैट वॉच, प्लीज शो मी दैट वॉच। वो क्या करेगा, वो वॉच लाएगा, वो आपको वॉच शो कर देगा। आप उसके बाद उसके फिजिकल फीचर्स चेक करते हो। लेकिन अगर आप इस मार्केट में हो, ई मार्केट में हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, अब दो ऑप्शन है, देयर आर टू ऑप्शन। आप एक वन ऑफ द बेस्ट चीज परचेज कर सकते हो और आप एक फेक चीज भी परचेज कर सकते हो। अब फिजिकल मार्केट का बेनिफिट क्या होगा कि वो चीज, वो आइटम आपने लाइव देखी है, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी है। लेकिन जब आप एक ई मार्केट से परचेज करते हो तो वो आपको एक बॉक्स में क्लोज आइटम ही डिलीवर करेंगे। लेकिन इसके लिए एक ट्रस्टवर्थी, ऑलवेज विजिट द ट्रस्टवर्थी वेबसाइट इफ यू वाना बाय एनीथिंग ऑनलाइन। जब भी आपने ऑनलाइन बेटा चीज कोई भी परचेज करनी है तो आपने क्या करना है, उसके लिए आपने ट्रस्टवर्थी वेबसाइट विजिट करनी है और उसके नीचे कमेंट बॉक्स होते हैं, आपने वो कमेंट्स जो है वो जरूर रीड आउट करने हैं। ताकि जब आप भी इस तरह की एक फिजिकल मार्केट की बजाय आप जब एक ई मार्केट बनाएंगे तो आपको सारे फीचर्स पता होना चाहिए, आपको कस्टमर्स की नेचर का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको कैटेगरी को डिवाइड करना आता हो कि आपने कैटेगरी को डिवाइड कैसे करना है, और आपने ये भी देखना है कि किस वक्त पे कस्टमर जो है परचेजिंग करता है। because you are a problem solver here at this point, you are a problem solver. If you are a best problem solver, it means that you need to divide into different categories. आपने different categories में divide करना है। आपने बेटा ऐसा नहीं करोगे कि आपने फूड आइटम में मोबाइल आइटम भी डाल दी और मोबाइल आइटम में आपने वेजिटेबल आइटम्स भी डाल दी। तो आपने क्या करना है बेटा, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर आपने डिफरेंट आइटम्स को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने लिस्ट करना है। ठीक है, लिस्ट करेंगे फिर ही यानी कि यूजर आएगा, यूजर उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा और आफ्टर दैट ही विल व्यू दैट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट आई हैव विजिटेड, यानी कि डिजाइन बाय दिस गाय। तो इसके लिए बेटा अब देखें, अब अली एक्सप्रेस ये वो मैंने बता दिया आपको, फिजिकल मार्केट से ई मार्केट में आ गया। अब आपने सपोज किया एक मोबाइल परचेज किया, जब मोबाइल के परचेज किया तो उसके लिखे है रेट, क्या लिखा हुआ है, रेट वाज मेंशन 9,000 रुपी। अब जब 9,000 रुपी आ गया तो उसने कहा सर्विस चार्जेस, व्हाट आर दी सर्विस चार्जेस, रुपी सपोज दैट 150। अब आपको कितना मिल गया, 9,150 रुपी आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। अब वो डिलीवरी मैन आया आपके पास, उसने आपको क्या किया, हैंड ओवर दैट मोबाइल टू यू। अब जब उसने आपको हैंड ओवर मोबाइल किया तो आपने कहा कि लेट मी चेक आफ्टर दैट आई विल पे यू। यू विल से दैट नो सर, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीवर। नॉट कि आपको वो चेक करवाना मेरी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू शो यू दैट व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल आई एम गोइंग टू गिव यू।
This is not my responsibility. My responsibility is just to deliver that mobile and receive payment from your side. अब उसने ये कहा तो आपने कहा कि ओके नहीं, नो 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 नो, आई वांट चेक दैट मोबाइल, आई वांट चेक दैट मोबाइल। वो आपको मोबाइल चेक नहीं करवाएगा। अब जब आपने पेमेंट की, सपोज दैट यू ओपन दैट मोबाइल, अब उस मोबाइल में क्या था जो आपने ऑर्डर किया था, तो वो मोबाइल आपको नहीं मिला। मोबाइल क्या हो गया? रिप्लेस हो गया। जब मोबाइल बेटा रिप्लेस हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? फिर वो आपसे कहेगा कि आप क्या करें जी, क्यूरी सेंड करें, क्यूरी सेंड करें मोबाइल को, किसके लिए? रिप्लेस करने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कंपनी लॉस ट्रस्ट, ठीक है, कंपनी लूज ट्रस्ट। अब उसने क्या किया? उसने, कंपनी ने ट्रस्ट अपना लूज कर दिया, ठीक है, लूज कर दिया उसने। जब उसने, आप उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करोगे, will you recommend other regarding that? जी बेटा, आप उसको रेकमेंड करोगे कि आप जाओ उस कंपनी से परचेज करो? नेवर। आप कभी भी उसको रेकमेंड नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसने आपके साथ किया है, चीटिंग किया है। जब चीटिंग करेगा तो आप कभी भी उस कंपनी पे ट्रस्ट नहीं करोगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कंपनी क्या करेगी? अपना बिजनेस लूज करेगी। इंस्टेड ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, वो क्या करेगी? आप अपना बैकएंड पे चली जाएगी। तो बेटा, जब भी आपने, आई थिंक दैट आई हैव गिवन यू एन असाइनमेंट रिगार्डिंग दिस, मैंने आपको इसी के अकॉर्डिंग एक असाइनमेंट दी थी कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। ठीक हो गया? अब देखें, लेट मी कम बैक उस एग्जांपल पे जो मैं आपको बता रहा था कि माय one of my friend has started business regarding online market। जब उसने ऑनलाइन मार्केट का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने क्या किया कि उसने, उसको लॉस हुआ काफी ज्यादा, यानी कि नियर अबाउट उसने 4 मिलियन नियर अबाउट 4 मिलियन रुपी 4 मिलियन रुपीज उसने स्पेंड किया। लेकिन 4 मिलियन रुपी यानी कि नियर अबाउट 40 लाख उसने स्पेंड किया। 40 लाख पे उसको बैकएंड पे क्या मिला? उसको 40 लाख अर्न होने की बजाय वो अंडर डेट चला गया। कितना? यानी कि नियर अबाउट 2 मिलियन अंडर डेट। अब वो अंडर डेट चला गया 2 मिलियन रुपी के, यानी कि 20 लाख उसके ऊपर यानी कि मकरूज हुआ। अब उसके देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके बेटा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? Okay, beta, what is the first step of problem solving? Yes, beta. I have told you about problem solving. What is the first step of problem solving? Yes, sir, Roma. Okay, who will tell me? Yes, beta. It is system requirement, I think. So you have told us yesterday. It was a system requirement. बेटा, वो मैंने आपको दिया था कि you are going to design a system. अब यहाँ पे what is the that is not related to the system, that is related to the problem solving. You are going to solve a problem. What is the first step of problem solving? आपके पास first step क्या है? Yes, beta. Analyze the problem. Yes, analyze the problem. Okay, very good. Analyze the problem. Okay. How do you analyze the problem? Yes, beta. How do you analyze the problem? 5 W's from 5 Yeah, by W's. using 5W. Very good. By using 5W.
दैट इज द आंसर बाय यूजिंग 5 W's. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनालाइज द प्रॉब्लम. आपने प्रॉब्लम को एनालाइज किया. अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि उसकी प्रॉब्लम क्या है कि ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस उसने स्टार्ट करना है. यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम है इज गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस. अब उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको क्या करना चाहिए? अपने बिजनेस को पहले क्या करना चाहिए था? हियर इज अ प्रॉब्लम फॉर हिम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? ही इज गोइंग टू अर्न मनी. अब अर्न मनी कैसे करेगा? इस मार्केट में चीजें सेल आउट करके. अब यहाँ पे सेल आउट करनी है उसने. उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले एनालाइज करना चाहिए. जी बेटा, how we can analyze regarding such business. अब suppose that he has given such task to us. उसने ये टास्क हमें दे दिया. अब हम कैसे एनालाइज करेंगे इसको? यस बेटा. ऑन बेटा. From 5 W's. एनालाइज. अब हम इसको क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम, इस बिजनेस को एनालाइज क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. इन डिफरेंट स्टेप्स. अच्छा जी. अब डिफरेंट स्टेप्स क्या है बेटा इसके लिए? उसके पास क्या होनी चाहिए? आइटम्स कौन सी हैं? what type of item he is going to sell out? that is the problem for him. Sir, I need to know that if you are offering me to analyze such business, please can you tell me what type of items you are going to sell out? I need to know, sir. After that I will design for you. First thing I need to know what type of item you are going to sell out. अब आपने उससे ये पूछा. अब उसने आपको बता दिया कि मैंने आइटम सेल आउट करनी है जी. आपने पूछा सर कौन सी आइटम सेल आउट करनी है? वो कहता है जी मैंने इस पे कौन सी आइटम सेल करनी है? मैंने इस पे इलेक्ट्रॉनिक सेल आउट करना चाह रहा हूँ. मैं इस पे क्या करना चाह रहा हूँ? फूड आइटम सेल आउट करना चाह रहा हूँ. अच्छा, ये तो हो गया. ठीक है, 2 आइटम्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया. अब इलेक्ट्रॉनिक. अच्छा जी, अब ये सॉर्ट आउट हो गया कि नहीं? यस बेटा. ऑन. Yes, sir. सॉर्ट आउट हो गया जी. एरिक. यस एरिक. Sir, I don't think so that it is completely resolved. Yeah, it is not completed yet. Why it is not completed yet? Because sir, we haven't solved it yet. We didn't get the problem. Yeah, because we can divide these items into further steps. हम इसको further steps में भी divide कर सकते हैं बेटा. Oliver, what do you say? Yes, Josefa. बेटा what do you say? अब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आप कहते हो कि सर आपने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल आउट करनी है? हाँ, अब ये भी क्वेश्चन आ गया. हाँ यार, इलेक्ट्रॉनिक आइटम. यार देयर इज अ गुड क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आई एम गोइंग टू सेल आउट. सर मैंने सेल आउट करना है मोबाइल. सर मैं सेल आउट करना चाह रहा हूँ. आई एम गोइंग टू सेल आउट टैबलेट. सर आई एम गोइंग टू सेल आउट लैपटॉप. अच्छा जी. इसके अलावा जी यूएसबी सर यूएसबी भी स्मार्ट वॉच. हाँ सर. हाँ अब ये भी सर यूएसबी इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, लेकिन सर पोर्टेबल डिवाइस है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट होती हैं. अब ये भी उससे कह सकते हैं दैट इज अ गुड आंसर कि हाँ सर देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है यूएसबी, लेकिन सर वो इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है क्योंकि उसकी देखिए पोर्ट होती है. जैसे वो मोबाइल से कनेक्टेड होती है तो वो चार्ज होना शुरू हो जाती है. ओके यार, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड आंसर. तो यूएसबी भी ऐड कर दो भी. यूएसबी भी ऐड कर दिया. उसके बाद फर्दर सर इसमें सर और आइटम आप ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक में आप हमारे पास आ गया जी. Refrigerator. हाँ जी बिल्कुल सही हो गया जी. आप इसमें सर फ्रिज वगैरह कर सकते हैं, कार्ड रीडर्स भी कर सकते हैं, यूएसबी कार्ड. ठीक है बेटा, वेरी गुड. कार्ड
अब देखिए आपने कहा कि यार कार्ड रीडर भी है सर, यूएसबी भी है सर, स्मार्ट वॉच भी है, फ्रिज भी है सर, टीवी भी है सर इसके अंदर। अब जब आपसे उसको यानी कि आपने उसको एक लिस्ट बना के दी, उसने कहा यार वेरी गुड यार, कि ये जानता है बंदा क्योंकि इसने मुझे बताई कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इस तरह की हो सकती हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हो गई जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब इसको मजीद आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तब तक बेटा डिवाइड करते जाओगे, यू विल डिवाइड टिल एंड, जब तक आपके फाइनल सोल्यूशन नहीं आ जाता, जब तक उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचती। जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी तो ही विल नो दैट यस ही हैज डन राइट जॉब फॉर मी। वो कब जानेगा। ये हो गया बेटा। ठीक है जी, आपने इसको डिवाइड कर दिया, आपने इसको एक सोल्यूशन दे दिया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कि सर दिस इज द सोल्यूशन फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब वो कहते हैं कि यस यार वेरी गुड, फूड आइटम्स के लिए क्या कहोगे। अब बेटा इसी तरह आपने क्या करना है, फूड आइटम्स को डिवाइड करते जाओगे। इज इट क्लियर। So fruits, vegetables. हाँ जी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स यानी कि हाउस होल्ड आइटम्स। हाउस होल्ड आइटम्स में आप क्या रखना चाह रहे हो, जैसे कि आप कोई भी शॉपिंग मार्ट देखते हो, उस शॉपिंग मार्ट में आप देखते हो कि यानी कि हमारे पास फ्लोर है, राइस है, शुगर है, यानी कि इस तरह की दूसरी चीजें हैं, वो भी सारी आपने आइटम्स में ऐड कर दी। अब आप उसको कहते हो कि सर आप कहते हो सर डू यू वांना ब्रिंग मोर कस्टमर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। Yes. व्हाट विल बी हिज आंसर। वो कहेगा नो। नो कहेगा बेटा, No. Yes कहेगा sir. यस कहेगा। दैट इज द आंसर, ही विल से यस। यस क्यों कहेगा, यस इज द ट्रू आंसर। व्हाई ही विल से यस। आप उसको कह रहे हैं सर डू यू वांना ब्रिंग मोर कस्टमर ऑन दिस प्लेटफॉर्म, वो कहेगा यस, क्योंकि जितना कस्टमर आएगा उसकी ऐप उतनी और चलेगी। हाँ जी उतना ऐप चलेगा, उतना उसका बिजनेस रन होगा। वो कहता है कि यस that is the true answer. If you say yes, if he says yes, I wanna bring more customer, I wanna see more customer on my platform because I wanna earn more money. If I will earn more money, I will give you bonus regarding that. आप कहते हो ओके सर, सर इसके लिए क्या करेंगे। आप कहते हो सर सेल ना लगा दें। अब आपने इसको ये कह दिया, अब वो ये सोचेगा Yes, कि यार सेल कैसे लगाएंगे यार, क्या ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब आप उसको कहते हो कि सर सेल लगा दें। यस बेटा। Hmm. अब आप उसको कहते हो कि सर आप कैलकुलेट करें कौन सी आइटम जो है वो जिसपे आप 20% या 30% या 50% सेल लगाते हो तो वो आपको रेवेन्यू देंगी। जी बेटा। अब वो सारी ये चीजें चेक करवानी है आपने उसको, आपने वो देखना है। सपोज करें वो देखता है स्मार्ट वॉच, उसने स्मार्ट वॉच देखी, उसने अर्न की है सपोज करते हैं 500 की, लेकिन वो अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा था, he was selling this smartwatch of rupees 1200। अब वो 1200 की सेल आउट कर रहा था वेबसाइट पे, वो 1200 की सेल आउट कर रहा था। आप कहते हो सर स्मार्ट वॉच पे देखें, स्मार्ट वॉच आपने 500 की परचेज की है लेकिन आप सेल आउट कर रहे हो 1200 की, यानी कि इस पे आपको अर्निंग हो रही है 700 रुपी। 700 रुपी आप उससे अर्न कर रहे हो स्मार्ट वॉच पे। तो सर आप इसको अगर 50% ऑफ कर दो, 50% ऑफ। अच्छा बेटा अगर 50% ऑफ करेगा तो कितने की हो जाएगी वॉच, वो चली जाएगी बेटा 600 की। जी उसका बिजनेस लॉस हुआ कि अर्न किया उसने, प्रॉफिट कितना आ गया उसे 100 rupees, sir. 100 रुपी। अब देखिए बंदा जब देखेगा उसने कहना यार ये 1200 की वॉच जो है ये मिल रही है 600 की, तो वो सबको अपने फ्रेंड्स को भी यानी कि उसका लिंक शेयर करेगा, अपने दोस्तों का भी लिंक शेयर करेगा। और स्मार्ट वॉच के साथ, इस स्मार्ट वॉच के साथ वो दूसरी चीजें देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वो 100% दूसरी चीजें भी देखेंगे। वो लैपटॉप भी देखेंगे, वो दूसरा यानी कि टैबलेट्स भी देखेंगे, और इस यानी कि सेल प्रमोशन के साथ दूसरी चीजें भी सेल आउट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक हो गया बेटा। अब 100 रुपीज ने अर्न किया, सपोज करते हैं उसकी 1000 सेल आउट हो गई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया बेटा
ये कितना प्रॉफिट उसने अर्न कर लिया? 1 लाख। 1 लाख। उसको तो लॉस ही नहीं हुआ। तो आपने उसकी प्रॉब्लम सोल्व करके दी कि नहीं? आपने उसको बेटा प्रॉब्लम सोल्व करके दिया, तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर फॉर दिस मार्केट। आपने उसकी मार्केट की, आपने उसको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके दिया, तो वो आपको मजीद बिजनेस फिर देगा। इज देयर एनी क्वेश्चन? यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, मेरे दोस्त ने यानी कि बिजनेस क्यों लॉस किया था? उसने इसलिए लॉस किया था क्योंकि एक तो उसकी फील्ड नहीं थी, उसके बाद यानी कि उसने कोई प्रमोशन नहीं डाली थी। प्रमोशन डालने के बाद उसने सोशल मीडिया पे इसको प्रमोट नहीं किया था। उसने ना ही यानी कि कोई कूपन वगैरह दिया था, जिसकी वजह से यानी कि कोई भी ट्रैफिक जो है वो मूव नहीं की। तो ट्रैफिक मूव नहीं हुई तो उसकी जो चीजें पड़ी हुई थी वो क्या हो गया, उसको जो उसके जो गोदाम वगैरह थे उसका उसको रेंट पड़ता गया। तो जब रेंट पड़ता गया तो उसने 2 साल बड़ी कोशिश की। 2 साल कोशिश करने के बाद उसका बिजनेस क्या हो गया, बिल्कुल डाउन पे आ गया। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है, आपने ट्रेंड भी देखने हैं, आपने कस्टमर्स को भी देखना है, आपने अपने एम्प्लॉय को भी देखना है। ये सारी चीजें देख के आपने उसको फिर सॉर्ट आउट करके देना है। इज इट क्लियर? यस बेटा, यस इज सर। देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनी क्वेश्चन? यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? सर ये अगर देखें ज्यादा नो अर्निंग आ सर। रही है। एक्सक्यूज मी इतना सर। ज्यादा अर्निंग आ गई है सेल यस आउट सेल सर। लगाने से? यस सर, ज्यादा हम्म। अर्निंग आ रही है। तो सर जो क्लाइंट होगा, जो उसका क्लाइंट होगा, तो सर वो उसकी वो सैलरी भी इंक्रीज कर देगा ना? हाँ जी, ये भी हो सकता है कि आपने उसको भी प्रमोशन देंगे। हाँ, ये भी डेट इज द वैलिड पॉइंट कि आपके बैकएंड पे जो आपके एम्प्लॉय हैं, व्हाट अबाउट दोस एम्प्लॉय? आप अगर अपने एम्प्लॉय को ये नहीं कहते कि सर लुक एट दिस पॉइंट, आई विल पे यू बोनस इफ यू सेल आउट मोर वॉचेस, इफ यू सेल आउट मोर टैबलेट्स। तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग करता जाएगा। उसके जो लिंक्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, यानी कि उसके जो फ्रेंड्स होंगे, उनको भी शेयरिंग करेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आए। जितना बिजनेस आएगा मुझे उस पर यानी कि प्रॉफिट मिलता जाएगा। यार दैट इज द वैलिड पॉइंट। यस बेटा, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, आई थिंक दैट टाइम इज ओवर। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे। सर 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। Okay, 10 minutes. I think that there is 10 minutes more. Okay, beta, have a good day and have a blessed life. God bless you all.